गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने कानून साज असम्बली और कौंसिल के मुश्तरका इजलास से मुखातिब होते हुए तेलंगाना की जामे तरक्की को कौम के लिए एक रोल मॉडल करार दिया है। तेलंगाना असम्बली और कौंसिल के बजट इजलास से खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि तेलंगाना जो कभी बिजली की कटौतियों की वजह से तारीकी में डूबा हुआ था, हुकूमत की मुसलसल कोशिशों के बाद 24 घंटे बरक़ी सरबराह करने वाली रियासत बन रहा है। उन्होंने अपने खिताब में रियासत के हर घर तक पीने के पानी की सरबराही, देही इलाकों और ज़रूरी शोबों की तरक्की का जिक्र करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना की गैर मामूली कामयाबी अवाम के आशीर्वाद, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के इंतजामिया, अवामी नुमाइंदों की मेहनत और सरकारी मुलाजिमीन की लगन से मुमकिन हो पाई है। रियासत तेलंगाना को सरमायाकार दोस्त रियासत कहते हुए गवर्नर ने बताया कि आईटी और दीगर शोबों में आला दर्जे की कंपनियों और मल्टीनेशनल कंपनियों को राग़िब किया जा रहा है। रियासत तेजी से तरक्की की राह पर गामजन है। तमिलिसाई ने हुकूमत की फलाही स्कीमात रैतु बंधु, रैतु बीमा और दलित बंधु का भी जिक्र किया है। The inclusive and comprehensive development of Telangana has become a role model for the country. The state is progressing in a phenomenal manner on every front. Extraordinary success of the state of Telangana is due to the blessings of the people, the skillful administration by the Honorable Chief Minister, the hard work of the people's representatives, and the dedication shown by the government employees. By the Honorable Chief Minister, the hard work of the people's representatives, and the dedication shown by the government employees. There was a time when the state suffered due to power cuts and darkness across the state. Today, due to efforts made and hard work done by my government, there is 24 hours power supply and there is brightness and light everywhere. There was a time when the entire agriculture sector was distressed. Today, the state is able to supply food to the rest of the country and has become the granary of the country. There was a time when people used to fight for every drop of water. From there, the state today is able to supply treated and safe drinking water through taps to every household of the state. There was a time when rural areas presented a picture of poverty and distress. From that today, Telangana villages are completely transformed and have become models with a very high quality of life. Telangana today is investor friendly, attracts the top class companies and multinationals in IT and other sectors. The state is making rapid progress in protecting the environment and increasing the granary also. The state is getting accolades across the state. My government faced the innumerable challenges to bring the state from a desperate situation to what has become a model for the rest of the country. Lots of uncertainties had to be faced. Obstacles had to be overcome skillfully. In a short span of 8.5 years, Telangana achieved a number of successes. The whole country today is awe of the progress made by Telangana. Today, the state is not only economically strong, but also one of the top performers in the country in welfare and development. तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव के हाथों 17 फरवरी को इफ्तिताह की जाने वाली नौ तामीरशुदा सेक्रेटेरिएट की इमारत में आतिशबाजी का वाकया पेश आया है। जराये ने बताया कि जुमा की अला सुबह नौ तामीरशुदा इमारत की ऊपर की मंजिलों में आग भड़क उठी, जहां माबाकी काम जारी था। वर्करों ने मेन कॉम्प्लेक्स से धुआं उठते देख इंचार्ज को आगाह किया। आतिशबाजी की इतला मिलते ही 12 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गए। फायर ब्रिगेड अमले ने पुलिस के हमरा 5 घंटों तक जद्दोजहद करने के बाद आग पर काबू पा लिया। फायर महकमे के डीजी वाई नागी रेड्डी और दीगर सीनियर एहलकारों ने जय वकूफ पर पहुंचकर मुआयना किया है। कहा जा रहा है कि एसी वेंट में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी होगी। फायर ऑफिसर श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि आतिशबाजी के असल वजूहात का पता लगाया जा रहा है।
दिल्ली शराब घोटाले की तहकीकात कर रही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने BRSMLC की कविता के 100 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का दावा किया है। ईडी ने दूसरी चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल, BRSMLC के कविता, वायएसआर कांग्रेस पार्टी के MP मेजेंटा का नाम सामने आया है। ईडी ने 428 सफ़हात पर मुश्तमिल चार्जशीट में बताया है कि शराब कारोबार में BRS रुकन कानून साज कौंसिल का अहम रोल रहा है। ईडी ने दावा किया है कि कविता ने तकरीबन 100 करोड़ रुपये रिश्वत की रकम हासिल की है। याद रहे कि कविता से पहले ही ईडी ने पूछताछ कर ली है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हुकाम का मजीद कहना है कि जनूबी हिंद के सियासी कायदीन की मदद से साउथ ग्रुप कायम किया गया था और बड़े पैमाने पर दिल्ली शराब पॉलिसी के तहत रकमी फायदा हासिल करने के लिए धांधलियां की गई हैं। चार्जशीट में 25 करोड़ पर मुश्तमिल 8 जोन कायम करते हुए 200 करोड़ रुपये कमाने का मंसूबा बनाने का भी खुलासा किया गया है। तहकीकाती एजेंसी ने चार्जशीट में मुलजिमीन और घोटाले से जुड़े अफराद के व्हाट्सएप पर हुई गुफ्तगू के स्क्रीनशॉट्स भी दाखिल किए हैं। नौतामीरशुदा सेक्रेटरीट में आतिशदगी से होने वाले नुकसान का जायजा लेने के लिए सेक्रेटरीट का दौरा करने वाले TPCC कायदीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर, साबिक MPs मल्लू रवि, अंजन कुमार यादव व दीगर ने जुमा की अवलीन सातों में ज़ेर तामीर सेक्रेटरीट की इमारत में आग लगने से होने वाले नुकसान का जायजा लेने के लिए सेक्रेटरीट का दौरा करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने इस कोशिश को नाकाम बनाते हुए सभी को गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सरबराह A रेवंत रेड्डी ने साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर की सरबराही में TPCC फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी है, जिसका मकसद नई सेक्रेटरीट की इमारत को पहुंचने वाले नुकसान का मुताला करना है। मोहम्मद अली शब्बीर व दीगर कायदीन ने हुकूमत की जानिब से आग लगने के वाक़े को तमसीली मश्क यानी कि मॉक ड्रिल करार देते हुए हकीकत को छुपाने की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगाया है और सख्त तनकीदें की है। रात देर गए यानी तकरीबन 2 बजे रात को तेलंगाना सेक्रेटरीट जो नई तामीर हो रही है वो बिल्डिंग में फायर एक्सीडेंट हुआ। ये ख़बर मिलते ही रेवंत रेड्डी साहब ने हमें हिदायत दी कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाकर वहाँ का मुआयना किया जाए और देखा जाए कि बिल्डिंग कैसी जली। लेकिन लोग कह रहे हैं, हमें इत्तला है कि KCR की जल्दबाजी की वजह से बिल्डिंग रात दिन काम की वजह से वहाँ ये फायर एक्सीडेंट हुआ। लेकिन डिपार्टमेंट ये कहता है, चीफ मिनिस्टर की पेशी कह रही है कि हम लोग पहले ट्रायल करें, हम लोग इसका फायर मॉक ड्रिल हमने मॉक ड्रिल करे हैं, लिहाजा ये एक्सीडेंट नहीं होता। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमको वहाँ जाने के लिए अलो करो और हम देखेंगे, अगर वाकई मॉक ड्रिल है तो हम आके मॉक ड्रिल बोलेंगे, लेकिन नहीं जाने देना हमारे को, हमारे गांधी भवन में हमको गिरफ्तार करना, उसे ये जाहिर हो रहा है कि दाल में काला कुछ है। KCR साहब जल्दबाजी करके, ये KCR के घर का पैसा नहीं है, उनके ख़ानदान के कमाई हुई दौलत नहीं है, ये तेलंगाना आवाम की दौलत है, तेलंगाना का पैसा है। हर एक को हक़ है वो बिल्डिंग जाके देखने का और वो जली हुई चीज़ देखने का। अभी भी मैं डिमांड कर रहा हूँ को हमको जाने दीजिए, बताइए। मैं ये भी बता रहा हूँ और बहुत बड़े छाप होंगे। अच्छी खासी वहाँ एक मंदिर थी, 2 मस्जिदें थे, मस्जिदों को भी शहीद किया, मंदिर को भी शहीद किया, उसका शाप बोलते ना शापम, तो उनको एक सज़ा मिली कि अच्छी खासी बिल्डिंग जली है और भी आगे जलेंगी। लिहाजा KCR तुम अपना सेंटीमेंट करे, अल्लाह ने अपना सेंटीमेंट बता दिया। सिनेमाटोग्राफी मिनिस्टर तलासानी श्रीनिवास यादव ने मशहूर हिदायतकार के तपस्वी विश्वनाथ की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया है। मारूफ डायरेक्टर के विश्वनाथ जुमेरात की रात देर गए इंतकाल कर गए हैं। तलासानी श्रीनिवास यादव ने उनकी रिहाइश का पहुंचकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया और लवाहिकीन से मुलाकात की। सिनेमाटोग्राफी वजीर ने विश्वनाथ की मौत को तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री और मताहों के लिए बड़ा नुकसान करार दिया है। क़ब्ल वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने भी हिदायतकार विश्वनाथ की मौत पर रंजो गम का इजहार करते हुए लवाहिकीन को ताज़ियत पेश की।
गृह जनशक्ति तेलंगाना प्रेसिडेंट शरद नायक ने रियासती हुकूमत से एसटी कमीशन को SC/ST कमीशन से अलहदा करने का मुतालबा किया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ICC सेमिनार हॉल में गृह जनशक्ति पर एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इससे खिताब करते हुए शरद नायक ने मरकजी और बीजेपी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो पोडू अराजियात के मसाइल का मुस्तकिल हल निकाले। उन्होंने हुकूमत तेलंगाना से ST बैकलॉग पर फौरी तौर पर भर्तियां करने और सेवालाल महाराज जयंती के मौके पर रियासत भर में छुट्टी का ऐलान करने की मांग की है। సమావేశానికి అన్ని జిల్లాల అధ్యక్షులు, రాష్ట్ర కార్యవర్గం, జిల్లాల కార్యవర్గం, మండల స్థాయి యూనివర్సిటీల అధ్యక్షులు, వాళ్ళ యొక్క కమిటీల అందరూ కూడా పాల్గొనడం జరిగింది। ఈ రోజు ఇవాళ మేము ఒక తీర్మానం చేయడం జరిగింది। ఏదైతే చాలా సంవత్సరాలుగా పెండింగ్ లో ఉన్నటువంటి సమస్యలు ఇప్పటికీ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు గిరిజనులు పట్టించుకోవడంలో భాగంగా మేము ఇంతకాలంగా ఎట్లయితే పోరాటం చేసినామో రాబోయే రోజుల్లో రాజ్యాంగబద్ధంగా మాకు రావాల్సినటువంటి హక్కుల కోసం పోరాటాన్ని గిరిజన శక్తి కొనసాగిస్తుంది। దాంట్లో భాగంగా ఈ నెల 15వ తారీఖున శివరాల్ మహారాజ్ జయంతి సెలవు దినంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాము। అదే విధంగా SC/ST కమిషన్ వేరు చేసి ఇలా వాటికి సంబంధించినటువంటి కమిషన్లు ఏర్పాటు చేయాలి। అదే విధంగా గిరిజన గురుకులాలకు ఇప్పటికి కూడా సొంత భవనాలు లేకుండా చాలా గురుకులాలు ఇలా రెంటెడ్ బిల్డింగ్ లో నడుస్తా ఉన్నాయి, మౌలిక సదుపాయాలు లేక ఉన్నాయి। వాటికి సంబంధించింది కూడా సొంత భవనాలు ఇలా ఏర్పాటు చేయాలని, అదే విధంగా పోడు భూములకు సంబంధించింది గత కొంతకాలంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వము మా గిరిజన శాఖ మంత్రి ఇయాలు ఇస్తాం రేపిస్తామని చెప్పి ఓన్లీ కాయిదాలతోనే మీటింగ్లతోనే సరిపెడుతున్నారు తప్ప ఇంతవరకు కూడా ఏ ఒక్క గిరిజనకి పోడు భూములకు సంబంధించిన పట్టాలు ఇవ్వకపోవడాన్ని మేము ఇలా తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం। వెంటనే పోడు భూములకు సంబంధించినటువంటి పట్టాలు ఇవ్వాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। అదే విధంగా ఏదైతే SC/ST బ్యాక్లాగ్ పోస్టులు ఇలా వందలాది వేలాది పోస్టులు ఉన్నా కానీ ఇంతవరకు కూడా SC/ST బ్యాక్లాగ్ సంబంధించినటువంటి పోస్టులని నింపకపోవడానికి కూడా మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాము, వ్యతిరేకిస్తా ఉన్నాము। వెంటనే దానికి సంబంధించిన జియో ఇలా పంపి అన్ని జిల్లాల్లో రాష్ట్ర స్థాయి ఉద్యోగాల్లో కూడా బ్యాక్లాగ్ పోస్టులు నింపాలని చెప్పి కూడా కోరుతా ఉన్నాము। అదే విధంగా ఏదైతే ఇవాళ గిరిజన విశ్వవిద్యాలయం बीजेपी रुकने असम्बली इटेला राजेंद्र ने कहा कि गवर्नर की तकरीर में ज़राई शोबे के लिए 24 घंटे बिजली की फराहमी का जिक्र सरासर झूठ है। असम्बली मीडिया पॉइंट पर राजेंद्र ने गवर्नर के दोनों ऐवानों से किए गए मुश्तरका खिताब पर तबसरा करते हुए कहा कि गवर्नर को पढ़ना चाहिए कि हुकूमत ने तकरीर में क्या लिखा है। हुकूमत ने गवर्नर की तकरीर में बहुत से झूठ बोले हैं। ज़राई शोबे के लिए 24 घंटे बरक़ी सरबराही की बात भी सरासर झूठ है। राजेंद्र ने धरानी के नाम पर अवाम के साथ जुल्म करने का भी रियासती हुकूमत पर इल्जाम लगाया है। बीजेपी रुकने असम्बली ने कहा कि सिद्दीपेट और गजवेल को छोड़कर तेलंगाना के किसी भी इलाके में गरीब लोगों के लिए डबल बेडरूम मकानात नहीं बनाए गए हैं। इटेला राजेंद्र ने SI कांस्टेबल उम्मीदवारों के 2 माह से एहतजाज करने के बावजूद भी उनका मसला हल न करने पर बरहमी का इजहार किया है। आज कंबाइंड सेशन MLA अरे भाई एस्टेंट क्या खोला था? सेशन चला, इसमें गवर्नर का जो स्पीच था वो स्पीच रिटर्न बाय गवर्नमेंट, वो ठीक नहीं है। सारे जो स्पीच के अंदर उसमें बहुत गलतियां बताए थे। नंबर 1, आज तेलंगाना के अंदर 24/7 पावर, अनइंटरप्टेड पावर, क्वालिटी पावर दे रहा बोल के जो बताया था वो सही नहीं है। आज तेलंगाना के अंदर 7 आवर्स, 8 आवर्स, 9 आवर्स करंट है, मगर 24 आवर्स करंट नहीं है। फार्मर का मोटर जला रहा, ट्रांसफार्मर जलते रहा और जो क्रॉप सूख जा रहा है वो तो फैक्ट है। आज फार्मर्स ने सबस्टेशन के पास, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर्स के पास जो धरना चला रहा है इसमें बताया 24/7 बोल के, ये गलत है। नंबर 2, एक धरनी बोल के जो लाया था लैंड रिफॉर्म्स के लिए, धरनी के बारे में एक बात भी नहीं बोला था। धरनी के वजह 20 लाख के ऊपर फार्मर्स, उन लोगों का जमीन पूरा गलती हो गया। आज उन लोगों को रईतु बंधु नहीं मिल रहा है, अगर उन्हें मरे तो इंश्योरेंस भी नहीं मिल रहा है। उसमें गवर्नर के स्पीच में उसका प्रस्तावना नहीं है, इनका प्रस्तावना नहीं है। वो बहुत गलती हो रहा है, बहुत लोग वो सुसाइड कर रहा है। नंबर 3, आप जानते हैं केंद्र सरकार हड़कों से थोड़ा लोन दिया है, केंद्र सरकार थोड़ा अर्बन हाउसिंग के लिए पैसा भी दिया है। आप जानते हैं हैदराबाद के अंदर कितना घर बना है, कितना मकान
गरीबों को बांटा, गलत है। वो उसका प्रस्ताव भी नहीं है। गवर्नर का स्पीच में 2014 में जो सीएम साहब ने वादा किया था, रूरल एरिया में गरीबों को डबल बेडरूम कंस्ट्रक्शन करके देना बोल के, इधर भी नहीं हुआ। वो हुआ तो सिद्दीपेट में हुआ, वो हुआ तो खुद सीएम साहब का कॉन्फ्रेंस में हुआ, मगर तेलंगाना में गरीबों को घर नहीं मिला। ऐसा बहुत सारे जो रिक्रूटमेंट के टाइम पे कितना गलती हो रहा है, कितना फॉल्स क्वेश्चंस आ रहा है, इसके बारे में कितना अनरेस्ट आप जानते हैं। रुकन राज्यसभा आर कृष्णैया ने कहा है कि मरकजी हुकूमत के पेश करदा बजट में बीसी तबके के साथ नाइंसाफी की गई है। मरकजी हुकूमत की जानिब से कॉरपोरेट कंपनियों को भारी रियायतें देने का इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि 45 लाख करोड़ रुपए के बजट में सिर्फ 2000 करोड़ रुपए बीसी तबके के लिए मख्तस किए गए हैं, जो कि शर्मनाक बात है। उन्होंने सवाल किया है कि 70 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल बीसी तबके के लिए ये रकम कैसे काफी होगी। आर कृष्णैया ने कहा है कि बीसी भी कौम की दौलत के हिस्सेदार हैं। उन्होंने बजट में तब्दीली करने और बीसी के लिए 2 लाख करोड़ रुपए बजट मख्तस करने का मुतालबा किया है। దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలోనన్నా చూడండి, రిజర్వేషన్లు పెట్టగానే దాంతో పాటు స్కాలర్షిప్లు పెడతారు. అంటే నువ్వు రిజర్వేషన్లు పెట్టి ఐఐటీలో రిజర్వేషన్లు పెట్టారు. కేంద్ర ప్రభుత్వము మొన్న పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టినటువంటి బడ్జెట్లో 45 లక్షల కోట్ల బడ్జెట్లో బీసీలకు బిచ్చం వేసినట్టు 2000 కోట్లు కేటాయించడం సిగ్గుండాలి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి. కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీ ప్రభుత్వానికి బుద్ధి ఉందా అని నేను అడుగుతున్నా. ఏమనుకుంటారు? బీసీలు అంటే బిచ్చగాలనుకుంటారా? అరే ఏంటిది? ఇది ఎక్కడ పోతుంది దేశం? ఏమవుతుంది? కార్పొరేట్ సంస్థలకు, అంబానీకి, అదానికి, విప్రో పెద్ద పెద్ద సంస్థలందరికీ, నీరవ్ మోడీకి, ఎస్కే జైన్కు వేల కోట్లు మొత్తం కార్పొరేట్ బడా సంస్థలకు 12 లక్షల కోట్ల రూపాయలు మాఫీ చేశారు. ఎవరి డబ్బు అది? ఇళ్ళకి వెళ్ళి ఇచ్చారా మీరు? ఇది ప్రజల డబ్బు మాఫీ చేసే అధికారం మీకు ఎక్కడుంది? మా డబ్బు మా పిల్లలకు చదువుకునికి ఇవ్వాలి. साउथ जोन टास्क फोर्स टीम और शाह इनायतगंज पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन क्रिकेट बेटिंग के रैकेट को बेनकाब करते हुए 3 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई है। टास्क फोर्स डीसीपी साउथ जोन जीत चक्रवर्ती ने मीडिया को बताया कि ऑनलाइन क्रिकेट बेटिंग करने वाले 3 अफराद को पकड़ लिया गया है, जिनमें इसका अहम सरगना भी शामिल है, जबकि उनके दीगर साथी मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने बताया कि आसानी से पैसा कमाने के लिए ये टोली क्रिकेट पर ऑनलाइन सट्टेबाजी कर रही थी। एक इतला पर कार्रवाई करते हुए इन सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 12,05,000 रुपये नकद रकम, 4 सेलफोन से जब्त किए गए हैं। डीसीपी ने बताया है कि गिरफ्तार किए गए अफराद को मजीद तफ्तीश के लिए SHO शाह इनायतगंज के हवाले किया गया है। लंगर हाउस पुलिस हदूद के इलाके डिफेंस कॉलोनी में एक खातून को उसके ही शौहर ने मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। ज़राए ने बताया कि 32 साल करीमा बेगम नामी खातून एक प्राइवेट स्कूल टीचर थी और उसके शौहर मोहम्मद यूसुफ के दरमियान अक्सर मामूली बातों पर झगड़ा हुआ करता था। पुलिस ने बताया कि दोनों के दरमियान आज होने वाली बहस के बाद करीमा बेगम घर से निकली थी कि यूसुफ ने लोहे की सलाख से उसके सर पर हमला कर दिया और उसे शदीद चोटें आई। खातून मौके पर ही दम तोड़ गई। लंगर हाउस पुलिस ने मुकामी वाक़े का जायजा लेते हुए मुकदमा दर्ज किया है और तफ्तीश का आगाज किया है। आज सुबह 9:15 को हमारे को DG 100L कॉल से एक कॉल आया कि अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है डिफेंस कॉलोनी में। उसके तहकीकात के लिए पेट्रोल कार को हम भिजाए। उधर भिजाने के बाद मालूम हुआ कि एक औरत बुर्का डाल लेके बेड में नीचे गिर है, खून के उसमें उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करे। उनका नाम है रेहाना, 30 ईयर्स है। वो कैम्ब्रिज स्कूल में टीचर का काम करती है उन्होंने। तो हॉस्पिटल ले आते तो बच्ची मर गई। उसके ऊपर हम इंक्वायरी करें तो क्या उनका हस्बैंड है यूसुफ बोल के, उन्होंने आके रॉड से मार के बात किया बोल के मालूम हुआ। और उसका हस्बैंड को उनको 7 साल का नीचे मैरिज हुआ और 7 साल से भी उनको ऊपर अंदर डिस्टर्बेंसेस है। उन्होंने अभी 1-1.5 साल से उनके अम्मा के घर में रह रहे थे डिफेंस कॉलोनी में। यहाँ कैम्ब्रिज स्कूल में टीचर काम करते हुए उन्हें जी रहे और हम इंक्वायरी कर रहे। वो यूसुफ के लिए हम ढूंढ के जल्दी उनको पकड़ के रिमांड कर देते। ये इनका नाम क्या है सब जो डेथ हुआ? रहीमा, उनका नाम करीमा है, 30 ईयर्स है।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।